students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 3rd English 2. We have completed all the syllabus of SEM 2. Now we will do the revision. Here is a revision test for you. So take out your book and write these questions of revision test in your book. So that this revision test is based on lesson 11 to 20. Okay. सो जो हमने आगे लर्न कर लिया है उसके बेस पे ही ये रिवीजन टेस्ट है. सभी क्वेश्चन होंगे उसमें, सभी अलग अलग चैप्टर्स के लेसन्स के हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका आगे का जो आपने लर्न किया है वो रिवाइज हो जाएगा. सो क्वेश्चन 1 इज मैच करना है. ओके, कॉलम ए टू कॉलम बी. Okay, so you can see that in column A there are nouns. Which are they? Fox, mango. Third is knife. Fourth is tooth. Fifth is ox. Sixth is mouse. Seventh is wolf. Eighth is city. Ninth is leaf, and tenth is child. In column B, A lives. So there are plural forms of nouns in column B. So what have you do? You have to do from column A the noun. In column A the noun is in singular number. You have to choose the plural number of these nouns from column B and then write the answers. Okay. B is children. C is cities. Bulls. Knives. Mangoes. G is auction. I and J. I is teeth and foxes. Okay, so how will we write the answers? We will write answers here. In one, question number 1 is from column A. So we will write here only number 1. And now choose the answer
column A number 1. So number 1, the answer for the number 1, the answer is foxes. Here is the noun fox. The plural form of fox is foxes. So we will write only the alphabet in which the answer of this number. Okay. तो ये जो नंबर का समझ लो 1 नंबर पे फोक्स है, तो फोक्स का आंसर क्या आएगा? इसमें से कौन सा फोक्स का प्लूरल फॉर्म है? तो फोक्सीज है, जो कि उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा है? तो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो जे है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 और उसके सामने जे लिख देंगे। ओके, अब 2 नंबर 3 नंबर सभी का आपको ऐसे देखकर लिखना है, बहुत ही इजी है। आंसर्स आपके सामने ही है, सिर्फ आपको फाइंड करके लिखने हैं। ओके, सेकेंड नंबर पे है मैंगो। सो व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैंगो? इट इज मैंगोज। द alphabet of mangoes is F. So we will write F to number 2. Okay. आपको जो सही आंसर है उसका अल्फाबेट आपको यहाँ पे लिखना है। Understood? Third is knife. Knife. So what is the plural form of knife? Leaves, children, cities, wools, knives. क्या आएगा? Knives. K-N-I-V-E-S. So what is the alphabet of this? Knives. So it is E. So we will write E before the number 3. Number 4 is tooth. The plural form of tooth is teeth. T-E-E-H. Okay, T-E-E-T-H. Teeth. So alphabet is I. Number 4 is answer is I. Answer of number 4 is I. Number 5 is ox. What is the plural of ox? It is auction. G. क्या आएगा? G. Number 5 answer is alphabet G. फिर है नंबर 6 माउस। माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस। क्या होता है? माइस यानी कि एच। नंबर 7 इज वुल्फ। तो वुल्स क्या आएगा प्लूरल? वुल्फ का प्लूरल होगा वुल्स। तो आप सभी ने ये लेसन लर्न किया है। तो क्या होता है, अगर कोई भी नाउन के एंड में एफ या एफ ई आता हो तो उसका एफ का और एफ ई को निकाल के उसका वीईएस कर देना है। यहाँ पे वुल्फ में लास्ट में एफ है, एफ को निकाल के हम एफ की जगह पे क्या रख देंगे? वीईएस। आप यहाँ पे भी देख सकते हो नाइफ, KNIFE। द लास्ट लेटर्स आर FE. We remove FE and added VES. So it became knives. Okay. And if there is O at the end of the noun, we add ES. Okay. Some nouns make their plurals by changing vowels inside it. जैसे कि टूथ है ना, तो वो उसके अंदर के जो वोवेल है उसमें चेंजेस करके उसके प्लूरल बनाते हैं। तो उसमें जैसे कि टूथ है तो डबल ओ की जगह पे हमने डबल ई कर दिया तो उसका प्लूरल बन गया। फिर हम देखें तो ऑक्स का लास्ट में एक्स हो तो जनरली ईएस ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्स है वो इरेगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो इरेगुलर है जिसका प्लूरल एस या ईएस लगाने से नहीं होता है, तो ऑक्स भी ऐसे
का ही वर्ड है. So we will add en to the ox. So the plural form of ox will be oxen. Wolf is wolves sitting. If there is y at the end of the noun and there is a consonant before it, y will become I and then we will add es to the noun. So here is the noun city. So what is the plural of city? So you can see here C. Okay, alphabet C is the right answer for cities. CITIES. Okay, Y becomes I and then ES added. नंबर 7 का आंसर हमने देखा क्या आएगा? Wolves. ES करना है. So D is the right answer. फिर है 8 नंबर पे. 8 नंबर पे सिटी है तो क्या आएगा? C. Cities. 9 नंबर पे है live. Okay. Again this noun ends in F. F और EF हो तो सॉरी F या FE हो तो F और FE को रिमूव करके हम ES ऐड करेंगे तो live का LEAVES leaves होता है जो नंबर A पे है. नंबर 10 पे है child. Child है is also irregular word. Child का plural है होता है children. ओके, तो चाइल्ड का प्लूरल है वो चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन खुद एक प्लूरल है. सो हमें चिल्ड्रंस ऐसा नहीं बोलना है, सिर्फ चिल्ड्रन ही बोलना है. सो इधर आएगा आंसर अल्फाबेट बी फॉर नंबर 10. ओके, सो आंसर्स आर नंबर 1 में आएगा J, 2 में आएगा F, 3 में आएगा E, 4 में आएगा I, 5 में G. आप लिख लो पहले, उसके बाद कंफर्म करते हैं. ओके, पहले ये अपने बुक में लिख लो. Let's confirm these. In number 1, answer is J, 2 में F, 3 E, 4 I, 5 G, 6 H, 7 D, 8 C, 9 A and 10 is B. Okay, J, F, E, I, G, H, D, C, A, B. Okay. Let's do the question number 2.
masculine, feminine, common gender and neuter gender. जो men होते हैं, जो boys होते हैं, men होते हैं, gents होते हैं, उसके लिए हम उसको हम masculine gender बोलेंगे. जो women होती है, girls होती है, ladies होती है, वो सभी feminine gender बोलते हैं उसको. फिर आएगा कॉमन जेंडर. तो जो फेमिनाइन भी नहीं है यानी कि मेन भी नहीं है, वुमन भी नहीं है, सॉरी वो मेन भी हो सकता है और वुमन भी हो सकता है, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि टीचर. टीचर आप किसको बोलते हैं? जो टीच करवाते हैं. तो टीचर में सर भी हो सकते हैं, टीचर में मैडम भी हो सकती है. तो टीचर है वो सर के लिए भी यूज होता है, मैडम के लिए, दोनों के लिए कॉमन होता है. वैसे ही हम बेबी, तो बेबी है, छोटा बेबी होता है, उसको हम बेबी बोलते हैं. चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उसको छोटा हो तो उसको हम बेबी ही बोलेंगे. फिर हम बोलेंगे चिल्ड्रन या चाइल्ड. तो वो भी कॉमन है कि चाइल्ड यानी बच्चा. वो बच्चा चाहे गर्ल है कि बॉय है वो नहीं देखना है, सिर्फ बच्चा. बच्चे के लिए हम कॉमन ही यूज करेंगे. यानी कि चाइल्ड है वो गर्ल के लिए भी यूज होगा, बॉय के लिए. टीचर है वो सर को भी टीचर बोलेंगे, मैडम को भी. यानी फेमिनाइन और मेस्कुलाइन दोनों के लिए यूज कर सके हम, उसको बोलेंगे कॉमन जेंडर. उसके बाद न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर है जनरली थिंग्स के लिए यूज होती है. जो थिंग्स होती है वो ना तो मेन होती है ना तो वुमन, यानी कि मेस्कुलाइन भी नहीं होती है और फेमिनाइन भी नहीं होती है, उसको हम बोलेंगे न्यूटर. जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, चेयर है, टेबल है ना. Here is a sentence. तो यहाँ पे आपको लिखा है कि अंडरलाइन वर्ड्स. तो यहाँ पे अंडरलाइन है वो किसके नीचे है? अंकल के नीचे है, हिज के नीचे है और नाइस के नीचे है. तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी ऑपोजिट जेंडर आपको लिखनी है. ऑपोजिट यानी जैसे कि गर्ल है तो गर्ल की ऑपोजिट बॉय होता है, बॉय है तो बॉय का ऑपोजिट गर्ल, मैन तो वुमन, वुमन तो मैन, सर तो उसका ऑपोजिट होता है मैडम. ओके. ऐसे यहाँ पे अंकल है तो अंकल का ऑपोजिट क्या, ऑपोजिट जेंडर कौन सी आएगी? यहाँ पे आपको लिखना है पूरा सेंटेंस. अंकल है तो उसको चेंज करके उसकी ऑपोजिट जेंडर लिखेंगे आंट. ओके. माय आंट इज टॉकिंग टू. अब यहाँ पे इज है, इसका ऑपोजिट जेंडर होगा हर, क्योंकि यहाँ पे अंकल थे इसलिए इज आया. अब आंट है तो क्या आएगा? हर. और नाइस की क्या ऑपोजिट होगा? नेफ्यू. ओके. तो दिस इज द आंसर. सेकंड इज यहाँ पे है द लायनेस वाज किल्ड बाय द हंटर. सो लायनेस और हंटर दोनों के नीचे लाइन है तो क्या आएगा? लायनेस का द लायन हो जाएगा. द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर का हो जाएगा हंट्रेस. Lion was killed by the huntress. The hero was cheered by the ladies.
यहाँ पे हीरो है और लेडीज है, इन दोनों का ऑपोजिट जेंडर लिखना है। तो क्या आएगा, हीरो का ऑपोजिट जेंडर आएगा हीरोइन। हीरोइन was cheered by the लेडीज का हो जाएगा जेंटलमैन। ओके, तो पहले ये 3 सेंटेंसेस है वो लिख लो अपने बुक में। Number 4 is that boy is my grandson। अब अंडरलाइन वर्ड्स है बॉय एंड ग्रैंडसन। तो बॉय का अपोजिट जेंडर होगा गर्ल और ग्रैंडसन है तो सन का क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। ओके, दैट girl is my granddaughter। The waitress was rude to him। यहाँ पे वेट्रेस हिम एंड ही, उसका आपको ऑपोजिट जेंडर लिखना है। तो वेट्रेस का होगा वेटर, हिम का हर और ही का सी कर देना है। क्या आएगा, वेटर was rude to her and she left at once। Okay, here is the question 2 is completed। We will continue from question 3 from next video। तब तक आपको जो आपने एक्सरसाइज लिखी है उसकी प्रैक्टिस करनी है। Thank you for watching and write these sentences